नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। टुडे विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पहला सवाल ये आता है कि पृथ्वी का अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाउ डिड द अर्थ इटसेल्फ फॉर्म? द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन years ago after the sun erupted and pieces of matter flew in the space, and that those pieces of matter later on became planets and their satellites, and together with the sun formed the solar system. तो जब सूरज से टुकड़े टूटे और उन टुकड़ों में से फिर टुकड़े टूटे तो वो प्लैनेट्स बने और उनके सैटेलाइट्स बने, और सन, द प्लैनेट्स एंड द सैटेलाइट्स टुगेदर मेक अप द सोलर सिस्टम। तो जो पृथ्वी है हमारी, वो एक सी नहीं है, उसके अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे जो आउटर मोस्ट लेयर है पृथ्वी का, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी पपड़ी है अर्थ की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है मैंटल। मैंटल जो लेयर है उसके भी अपने सब लेयर्स हैं। तो मैंटल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट बाउंड्री है मैंटल की, वो सॉलिड है, रॉक्स की बनी हुई। तो मैंटल की टॉप मोस्ट बाउंड्री और अर्थ क्रस्ट दोनों सॉलिड रॉक्स के बने हैं, और इन दोनों के मिलाप से जो बनता है वो लिथोस्फेयर होता है। The topmost boundary of the mantle, which is composed of solid rocks, plus the earth crust, which is composed of solid rocks, together these two layers form the lithosphere. Lithos means rocks and sphere means area, so the area of rocks. After the lithosphere comes the molten mantle. लिथोस्फेयर के बाद जो मैंटल है वो पिघले हुए रॉक्स का बना हुआ है, और ये जो पिघले हुए रॉक्स की लेयर है वो अर्थ के क्रस्ट से भारी है। उसके अंदर की लेयर जो है वो है आउटर कोर। तो जो आउटर कोर है वो मैंटल के मुकाबले भारी है। एंड देन कम्स द इनर कोर, व्हिच इज द हेवीएस्ट, द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज composed mainly of iron and nickel. So it's almost 80% iron and 20% nickel. That's the inner core. It's the densest and heaviest part of the earth. The outer core is made up of iron and nickel again, but there is more nickel and relatively less iron, and it's relatively less dense than the inner core. The mantle is composed of silicon, magnesium, iron, and other elements, and it's less dense than the inner core, and hence it lies over the inner core, because we all know that denser elements always settle down in the middle, in deeper sections, whereas the lighter elements always float on top of the denser elements. And that's how the inner core is the heaviest, densest, and the hottest part of the earth, followed by the outer core, then the mantle, and then the lightest part of the earth is a crust. The earth crust is solid. The question arises why the different layers have different material states. The earth crust is solid because it is in constant touch with the water vapor, air, rain, and it is exposed to the outer space, and it got the time to cool down. Below the lithosphere lies the mantle, which is composed of partially molten rocks, and it is very hot because of constant radioactive decay in this layer. Again, the inner core, which is hotter and denser than the mantle because of constant radioactive decay, constant pressure, which causes heat energy to release. And there is another reason which I'll tell you later in the video. And the inner core, despite it being the hottest part in the Earth's structure, but because of the immense pressure exerted on the inner core from all sides, from all the other layers above it, it fails to expand and remains solid. जो इनर कोर है उसके ऊपर बाकी सारी लेयर्स की तरफ से इतना दबाव है कि वो फैल नहीं पाता है और सॉलिड ही रह जाता है। Sometimes the question is asked, why is the Earth's interior hot? इसके कई कारण हैं। Why Earth का इंटीरियर हॉट क्यों है? कारण इसके कई हैं। सबसे पहला कारण खुद पृथ्वी की उत्पत्ति में ही है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूरज से हुई थी। सूरज गर्म है और पृथ्वी भी शुरुआत में गर्म ही थी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो उसकी बाहरी सतह पहले ठंडी होती है और फिर वह धीरे धीरे अंदर भी ठंडी होने लगती है। पर अर्थ की जो बाहरी सतह है वो तो ठंडी हो गई,
पर अंदरूनी सतहों को ठंडी होने का कभी मौका ही नहीं मिला। मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहले से ही वो गर्म थी, और जब रेडियो एक्टिव डिके कॉन्स्टेंटली अंदर होता ही रहा तो उस गर्मी को ठंडे होने का मौका ही नहीं मिला। द अर्थ रिमेन्स टू the earth remains to be hot in the inside because of constant radioactive decay, which releases constant heat energy inside the earth, and hence the inside of the earth never got a chance to cool down, and that's why the temperature of the interior core of the earth could be as high as 5,000 degrees Celsius or even more. तो ये हम समझ गए कि अर्थ कैसे बनी, उसके अंदर कौन कौन से लेयर्स हैं, और उसके अंदर जो लेयर है वो किस रूप में है, और कितनी गर्म है और क्यों गर्म है। सवाल एक ये भी आता है कि कौन सी लेयर की थिकनेस क्या है। तो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, द क्रस्ट, विच इज द, जो कि पपड़ी है, वो सबसे पतली लेयर है। उसके बाद जो मैंटल है, जो रॉक्स का, पार्शियली मॉल्टन रॉक्स का बना है, वो सबसे मोटा लेयर है, मोटी सतह है अर्थ की। उसके बाद इनर कोर, और उसके बाद आउटर कोर। सो क्रस्ट इज द थिनेस्ट, मैंटल इज द थिकेस्ट, देन कम्स द आउटर कोर, एंड देन कम्स द इनर कोर। तो क्रस्ट का जो रेडियस है वो 5 से 70 किलोमीटर के बीच में वैरी करता है। जी हाँ, जो क्रस्ट है वो एक साथ थिकनेस नहीं है हर जगह। जहां पे समंदर की सतह जहां है, उसके नीचे का जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत कम है। उसकी थिकनेस कम से जो मिनिमल होती है वो 5 किलोमीटर हो जाती है। और जो धरती पर जो क्रस्ट की थिकनेस है, जो जमीनी जो सतह है, उसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है। एवरेज कहा जाता है कि एवरेज थिकनेस अगर हम क्रस्ट का ले लें तो वो 30 किलोमीटर है, लेकिन ये थिकनेस वेरी करती है। इट कुड बी एज लो एज 5 किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन, whereas the crust could be as thick as 70 kilometers on surface of on the land. उसके बाद mantle, which is the thickest layer of the earth. तो mantle की जो thickness है वो है 2,900 किलोमीटर. The mantle is as thick as 2,900 kilometers in radius. Then comes the outer core. The outer core is as thick as 2,400 kilometers. Then comes the inner core. The inner core is as thick as 1,220 kilometers in radius. The average density of Earth is 5.515 gram. I repeat, the average density of Earth is 5.515 gram per cubic meter, whereas the average density of the Earth's crust is just 3 gram per cubic meter. So there's a difference in the average density of the Earth, which is 5.515 gram per cubic centimeter. Sorry, अगर मैंने गलत कहा तो 5.515 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट है वो सिर्फ 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये दोनों डेंसिटीज में फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि क्रस्ट जो है वो हल्की लेयर है तो उसकी डेंसिटी कम है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि टोटल जो अर्थ है वो तो काफी भारी है, तो उसका जब एवरेज हम लेते हैं तो वो 5.515 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक आता है। तो अब हमें पता है कि पृथ्वी के अलग अलग लेयर्स होते हैं। एक और मैं बता दूं, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट को उतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कि जो मैंटल होता है उसके भी सब लेयर्स होते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मैंटल है that forms a part of the lithosphere, then comes the asthenosphere, then comes the inner mantle. तो मैंटल के भी अलग अलग लेयर्स हैं, पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमें एज एनवायरमेंटलिस्ट जानने की जरूरत नहीं होती है। बस इतना जान लें, asthenosphere is composed of partially molten rocks, क्योंकि ये सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है कि asthenosphere क्या है। Asthenosphere is a layer of mantle composed of partially molten rocks. हमें कैसे पता कि अर्थ के अलग अलग लेयर्स होती हैं, अर्थ होमोजेनस नहीं है, हमें कैसे पता? क्योंकि आज तक ऐसी कोई साइंस, ऐसी कोई मशीनरी, ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं बनी जो कि अर्थ के लिथोस्फेयर के बियॉन्ड भेज सके। तो हम जो ह्यूमन साइंस है वो लिथोस्फेयर के अंदर भेजने वाली कोई मशीन बना नहीं सका। तो फिर हमें कैसे पता कि मैंटल में पार्शियली मॉल्टन रॉक्स है और जो इनर कोर है उसमें शायद आयरन और निकल है जो पार्शियली मॉल्टन स्टेज में है या मॉल्टन स्टेज में है।
एक कैरमल या पिघले हुए चॉकलेट की कंसिस्टेंसी में वो है आयरन और निकल, और जो इनर कोर है वो एकदम डेंस है और सॉलिड आयरन और निकल का बना है। ये सब कुछ हमें पता है। तो हमें कैसे पता है? हमें पता है क्योंकि हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं। द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ was deduced by scientists by studying seismic waves and earthquakes via a seismograph. Seismograph, seismograph या seismograph, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है इंग्लिश में, पर बात वही है। SEIS, साइज MOGRAPH, seismograph। seismograph का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। The instrument used to study the earthquakes or the nature of earthquakes is called seismograph, or the instrument used to study earthquakes and seismic waves is called a seismograph. The seismograph produces a seismogram. So seismogram is the output and seismograph is the machine itself. तो seismograph जो मशीन होता है वो जो धरती में जो भी कंपन होता है, जो अर्थक्वेक होता है, उसको स्टडी करता है और वो एक साइज्मोग्राफ प्रोड्यूस करता है। वो ग्राफ पेपर के ऊपर एक लकीर होती है, जिगजैग जिगजैग, और उससे हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। उस लकीर की का जो स्पीड है, उस लकीर का जो नेचर है, वो स्टडी करके हमें समझ में आता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक सा नहीं है। साइज्मोग्राफ कई तरह के वेव्स को स्टडी करता है, और जो अर्थक्वेक से रिलीज हुए वेव्स होते हैं उनके भी कई प्रकार हैं। अर्थक्वेक क्या है? The sudden violent shaking of earth due to activity happening inside it is called earthquake. जो अचानक से धरती कांपने लगती है क्योंकि धरती के अंदर कुछ एक्टिविटी हुई होती है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक से दो मुख्य प्रकार के वेव्स इमिट होते हैं। एक होते हैं बॉडी वेव्स, एक होते हैं सरफेस वेव्स। Body waves are primary waves and secondary waves. Primary waves reach the seismograph first. Secondary waves are noted on the seismograph after the primary waves and hence are called secondary waves. These are body waves. Body waves travel through the interior body of the earth and hence are called body waves. Surface waves travel only on the surface of the earth and hence are called surface waves. तो बॉडी वेव्स धरती के अंदर तक ट्रैवल करते हैं, तो हमें पता है कि वो बॉडी में जाते हैं, इसलिए वो बॉडी वेव्स हैं। और वो दो प्रकार के हैं, प्राइमरी वेव जो पहले पहुंचते हैं, सेकेंडरी वेव जो बाद में पहुंचते हैं, और सरफेस वेव जो सिर्फ धरती के सरफेस पर ही ट्रैवल कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो अलग अलग वेव्स जो अर्थक्वेक के समय बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और सीज्मोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्यों ये वेव्स जो हैं सिर्फ सरफेस पे ही रहते हैं, क्यों कुछ वेव सरफेस के अंदर तक जा पाते हैं, और जो वेव सरफेस के अंदर जाते हैं उनका भी डायरेक्शन और स्पीड में फर्क आ जाता है। तो ये क्यों फर्क आता है? फर्क आता है इसका मतलब तो ये हुआ कि होमोजेनस नहीं है, कहीं अंदर कोई मैटर के स्टेट में या केमिकल कॉम्पोजिशन में फर्क है, और इसीलिए जो वेव्स है वो अलग अलग स्पीड से और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। कुछ वेव अंदर तक भेद नहीं पाते, शायद इसलिए क्योंकि अंदर का जो मटेरियल है वो नहीं है जो सरफेस पे है। सरफेस पे सॉलिड है इसलिए वो सरफेस पे रहते हैं, और अंदर शायद लिक्विड है इसलिए वो अंदर नहीं जा पाते। तो इन्हीं सब कारणों की स्टडी करके ये पता चला, by studying seismic wave we could understand that the interior of earth is not a homogeneous mass but is chemically very different and each layer is different with different properties. तो हमने अब ये जाना है कि धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है, उनकी थिकनेस अलग अलग है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है, और हमने ये भी जाना है कि अर्थक्वेक की स्टडी से हम पता लगा पाए कि ये ऐसा अलग अलग क्यों है। अर्थक्वेक क्या है? एक और छोटी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि अर्थक्वेक किन कारणों से होता है। तो अर्थक्वेक कई कारणों से होता है। पहला जो होता है वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। टेक्टोनिक मूवमेंट मतलब धरती के अंदर ही जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से। लिथोस्फेयर जो है वो एक सॉलिड रॉक नहीं है, लिथोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी प्लेट्स। तो टुकड़ों से बना है लिथोस्फेयर और आपस में ज्वाइन है। ये देखिए, ये एक गेंद है, समझिए कि ये धरती है और धरती की ऊपरी सतह है। तो धरती की जो ऊपरी सतह है वो इस गेंद को देखिए, ये बिल्कुल
एक लेयर तो बनाती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ के ये बाहरी लेयर बनाई गई है। धरती की बाहरी लेयर भी ऐसी ही है, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। सो दोस टेक्टोनिक प्लेट्स कंपोज द अर्थ's outermost layer, that's the crust. And when an earthquake happens, it mostly happens around the tectonic plate boundary, where two plates meet. तो इसी बाउंड्री पर जब दो टुकड़े अर्थ क्रस्ट के आपस में जहां जुड़े होते हैं, यहीं पर अर्थक्वेक होता है। और ये अर्थक्वेक नेचुरल तरीके से जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होता है, तो वो क्यों होता है कि अर्थ के अंदर कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होता है, और वो डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जाहिर है वहीं रिलीज होगी जहां फॉल्ट है, जहां बाउंड्री है। तो ये अर्थक्वेक समझने का सबसे आसान तरीका है। ये एनर्जी इस बाउंड्री पर रिलीज होती है टेक्टोनिक, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट्स, तो अर्थक्वेक होता है। तो ये एक बहुत कॉमन रीजन है, सबसे कॉमन रीजन अर्थक्वेक होने का यही है, ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच कंप्राइज द अर्थ क्रस्ट। टेक्टोनिक अर्थक्वेक सबसे ज्यादा यही होता है। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। कभी कभी ये जो बाउंड्री है इसमें कोई क्रैक होता है, तो अंदर जो मॉल्टन लेयर ऑफ रॉक है मैंटल में, वो इस क्रैक से बाहर आता है, और यही वोल्केनिक इरप्शन है। when the molten magma which comprises molten rocks, it comes out from a crack within the on the boundary of two tectonic plates. It forms a volcanic island or volcanic mountain, and that's called a volcanic eruption. Simple terms में कहें तो the sudden release of molten rocks from the interior of the earth over the earth's crust is called volcanic eruption. And volcanic eruption not only just releases molten rocks, it also releases fumes, metallic fumes and gases also. तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे भी आसपास की धरती हिलती है, तो वो भी अर्थक्वेक का कारण होता है। ये दोनों तो होते हैं नेचुरल कारण। अब मैन इंड्यूस्ड कारण भी होते हैं अर्थक्वेक। मैन इंड्यूस्ड कारण क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से भी कभी कभी अर्थक्वेक आता है। जैसे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या कोई हैवी बम्बार्डमेंट, कोई भारी डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब लाइक एटम बॉम्ब या कोई और बॉम्ब अगर हवाई जहाज से नीचे धरती पर गिराया जाता है, तो उस जहां गिरता है उस इलाके में भी अर्थक्वेक आता है। तो ये मैन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है। चौथा रीजन होता है लैंड सब्सिडेंस, धरती भूस्खलन जो होता है कि कभी जैसे धरती का ये लेयर लिथोस्फीयर, इसके अंदर हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, खुदाई करते हैं। सपोज धरती की लेयर, इसके नीचे कोयला था, हमने सारा कोयला निकाल लिया, या इसके नीचे कोई और मेटल था, वो मेटल को हमने सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अब यहाँ तो खाली हो गया। तो ऊपर जो धरती है उसके नीचे आपने खाली कर दिया, तो जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा ये धरती धंस जाएगी और फिर ये अर्थक्वेक का कारण बनेगी। तो ये है मैन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। इसको मैं एक छोटा सा पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखिए, एक कारण होता है ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि अर्थ के इंटीरियर में कोई डिस्टर्बेंस हुआ और ऊपर ये जो प्लेट बाउंड्री है यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा, और यही होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। एक होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक कि ये जो मॉल्टन लेयर ऑफ रॉक्स है, यहाँ से रॉक्स बाहर निकलेंगी एकदम प्रेशर के साथ, और एकदम बहुत ज्यादा हीट एनर्जी और बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा, और आसमान में वोल्केनिक इरप्शन होगा, और तभी भी आसपास की धरती हिलेगी। तो वो वोल्केनिक अर्थक्वेक है। एक्सप्लोजन, जैसा मैंने कहा कि कोई हैवी बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा, गिराया जाएगा आसमान से, तो वहां की धरती में भी कंपन होगा, और वो अर्थक्वेक। और कोलैप्स या लैंड सब्सिडेंस, जो भी आप इसको कह लें, कि जब कोई मैन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से, नीचे जो माइनिंग एक्टिविटी होती है उसकी वजह से, या कभी कभी इस वजह से भी कि ऊपर जो धरती है वो बहुत स्ट्रांग नहीं, जैसे रेत धरती में बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर आपने बहुत हाई राइज स्काईस्क्रेपर्स बना दिए, और धरती उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है, या बिल्डिंग का फाउंडेशन उस तरह से उन स्काईस्क्रेपर्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां भी
धरती में कंपन होगा क्योंकि धरती सपोर्ट नहीं कर पाएगी उतने वेट को और वो कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और ऐसा होता भी है। तो ये 4 कारण हैं अर्थक्वेक के। जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, फिर है मैंटल, फिर है आउटर कोर, फिर है इनर कोर। ये एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, क्योंकि मैंने आपसे मौखिक रूप से सब कुछ कह दिया, लेकिन एक डायग्राम से दिखाने से दिमाग में हमेशा बैठ जाती है बात, तो ये इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया। एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइज्मोग्राफ क्या है, क्योंकि साइज्मोग्राफ के बारे में भी मैंने आपको आज बताया था। तो साइज्मोग्राफ क्या है? तो ये है, ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही धरती में थोड़ा सा भी कंपन होता है ये पेंसिल हिलती है और ये पेंसिल एक जिगजैग लाइन यहाँ ड्रॉ करती जाएगी, और यही जो जिगजैग लाइन इस पेपर पे हमें मिलेगी उसको हम साइज्मोग्राम कहते हैं, और ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसको साइज्मोग्राफ कहते हैं। तो साइज्मोग्राम वो दिखता कैसे है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है एक साइज्मोग्राम। ये प्राइमरी वेव है और ये सेकेंडरी वेव है। जो प्राइमरी वेव है वो साइज्मोग्राफ में पहले रिकॉर्ड होती है और सेकेंडरी वेव बाद में, और इसलिए उनको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दिखा जाता है। आशा है आज के वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। मुझे ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक को समझना इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अर्थक्वेक में कौन कौन सी वेव होती हैं, उनका क्या नेचर होता है, उनकी डिटेल्स, ये सारा मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। So I have told you enough about the interior of the earth and how do we know about the interior of the earth, the instruments involved. But the earthquake itself is a tectonic earthquake, especially, is a wide topic. There are multiple types of waves that are generated in a tectonic earthquake, and we need to know about all of them in more details because lots of objective type questions can be framed out of that information. So I'll bring to you that particular information in my next video. Until then, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.